وزراء پنجاب کا اہم اجلاس اور اہم فیصلے۔ گندم کے ریٹ کو استحکام پر لانے کے لیے ہدایت زیر غور۔ سوموار سے گندم کوٹا بحالی کا بھی فیصلہ کر لیا گیا۔ فلور ملز کو حکومت پنجاب 1400 کے حساب سے سرکاری گندم کے گوداموں سے گندم فراہم کرے گی تاکہ آٹے کے بحران اور قیمتوں پر کنٹرول کیا جا سکے۔ حکومت کے اس فیصلے پر گجر خان آٹا ڈیلر ایسوسی ایشن کے صدر مرزا شاہد محمود نے پنجاب حکومت بالخصوص وزیراعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی کاوشوں کو خوب سراہا اور حکومت کے اس فیصلے کو خوش آئند قرار دیا۔ مرزا شاہد محمود نے آخر میں ایس پی نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کی اس وبا میں حکومت پنجاب کا یہ فیصلہ غریب عوام کے لیے بہت بڑا ریلیف اور فائدہ مند ثابت ہوگا۔ سوسی بورڈ ملک شاہ زیب طارق، ایس پی نیوز، گجر خان۔ خبر شامل کرتے ہیں ہری پور سے۔ ہری پور گاؤں چنگی بانڈی جامع مسجد سید نا امیر معاویہ میں اہل علاقہ اور اہل سنت والجماعت پاکستان ضلع ہری پور کی قائدین نے شرکت کی۔ اس موقع پر گاؤں چنگی بانڈی میں امام بارگاہ کی تعمیر کے حوالے سے پیدا ہونے والے خدشات اور فسادات سے انتظامیہ کو باور کرایا گیا۔ عمائدین علاقہ کا کہنا ہے کہ گاؤں چنگی بانڈی میں اہل تشیع کے چند گھرانے ہیں جبکہ اہل سنت والجماعت کے 1200 سے زائد گھرانے موجود ہیں، جس پر ڈی سی او ہری پور اور این او سی کے لیے درخواست دی گئی، جس کی وجہ سے عوام میں اشتعال پایا جاتا ہے کہ اگر یہ این او سی جاری کر دی گئی تو حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں، جس کی ذمہ داری انتظامیہ ڈی پی او ہری پور اور ڈی سی او ہری پور ہوں گے۔ اس لیے ڈی سی ہری پور سے مطالبہ کرتے ہیں کہ این او سی جاری نہ کی جائے کیونکہ یہ مسجد کے نام پر امام بارگاہ تعمیر کرانا چاہتے ہیں، جبکہ گاؤں میں 10-15 میٹر کے فاصلے پر جامع مسجد بھی موجود ہے۔ ان خیالات کا اظہار اہل سنت والجماعت پاکستان ضلع ہری پور کے صدر حافظ عبد الوحید جدون، مولانا انیس الرحمان، مولانا قادر سلیمان، مولانا عمر جلالی، مولانا عبد الرحمان قادری، عبد القیوم، مولانا محمد محمود الرحمان نے کیا۔ اس موقع پر اہل علاقہ نے بطور جرگہ مسجد میں شرکت کی اور مشاورتی اجلاس کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مقررین کا کہنا ہے کہ اگر اہل تشیع کی جلوسوں، مجالس اور چاردیواری کے اندر روکا نہ گیا تو یہاں پر قتل و قتال کی تمام ذمہ داری انتظامیہ پر ہوگی۔ سوسی پور سردار جہاں زیب انجم، ایگزیکٹو ایڈیٹر، ایس پی نیوز، ہزارہ ڈویژن۔ خبر شامل کرتے ہیں سائیوال سے۔ طارق بن زیاد کالونی کی ایکس بلاک میں افسوسناک واقعہ، چاچا انوار کی بیوی، بابی اور بیٹی سمیت قتل۔ سائیوال کے علاقے گلستان کالونی سے افسوسناک واقعہ، جہاں نامعلوم افراد نے گھر میں موجود میاں بیوی، بابی اور بیٹی کو قتل کر دیا۔ مقتول کی شناخت انوار الحق کے نام سے ہوئی، جو تقریباً 25 سال طارق بن زیاد کالونی کے ایکس بلاک گلی نمبر 4 میں کریانے کی دکان تھی۔ ذرائع کے مطابق لاشوں کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا جو 3 سے 4 روز پرانی معلوم ہوئی تھی۔ پولیس نے لاشوں کو تحویل میں لے کر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ سوسی رپورٹ قمر ذیشان، بیورو چیف، ایس پی نیوز، سائیوال۔ خبر شامل کرتے ہیں سائیوال سے۔ ضلعی انتظامیہ کی بھرپور کوششوں اور مسلسل انسپیکشن سے ضلع سائیوال میں پٹرول اور ڈیزل کی قلت مکمل طور پر دور ہو گئی اور تمام پٹرول اسٹیشنز پر صارفین کو پٹرول کی دستیابی جاری۔ ڈپٹی کمشنر ذیشان جاوید کی ہدایت پر مجسٹریٹ نے پٹرول پمپ کے انسپیکشن کا سلسلہ مسلسل جاری رکھا اور 16 جون کو بھی 25 پمپس کی چیکنگ کی، جس دوران تمام پمپس پر پٹرول اور ڈیزل کی وافر مقدار موجود تھی۔ ان پمپس میں 4 پی ایس او، 3 ایسکار، 5 شیل، 5 ٹول پارکو، 1 بسکو و دیگر پمپ بھی شامل ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ذیشان جاوید نے تمام مجسٹریٹ کو ہدایت کی ہے کہ وہ چیکنگ کے دوران پٹرول اور ڈیزل کی دستیابی کے ساتھ ساتھ معیار اور مقدار کی چیکنگ بھی کریں تاکہ صارفین کے مفادات کا مکمل تحفظ کیا جا سکے۔ سوسی رپورٹ قمر ذیشان، بیورو چیف، ایس پی نیوز، سائیوال۔ خبر شامل کرتے ہیں سائیوال سے۔ تھانہ غلہ منڈی کی حدود میں گھر میں گھس کر تشدد کا نشانہ۔ سائیوال کے علاقہ بابا فرید پارک میں 6 افراد کا دن دیہڑے گھر میں گھس کر یتیم نوجوان پر تشدد۔ تفصیلات کے مطابق نوجوان نے ملزمان سے موٹر سائیکل خریدی تھی اور کورونا کی وجہ سے بے روزگار مزمل حسین کو 6 ایک ساتھ جمع نہیں کروا سکا، جس پر ملزمان نے قانون کی دچیاں اڑا دیں اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گھر میں گھس کے اور نوجوان کو گھر سے اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بناتے رہے۔ بیوہ خاتون بلقیس اختر بیٹے پر تشدد کے خلاف پولیس اسٹیشن پہنچ گئی، ارباب اختیار سے انصاف کی اپیل کرتے ہوئے ملزمان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔
सुसी रिपोर्ट कमर शान, ब्यूरो चीफ, एसपी न्यूज साहिवाल। खबर शामिल करते हैं कामोकी से। कामोकी थाना सिटी के इलाके में तमाम दुकानें शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी, मगर कामोकी थाना सिटी के इलाका में तमाम दुकानें सरेआम रात 1 या 2 बजे तक खुली रहती हैं। सिटी पुलिस बेबस हो गई। इसी वजह से मजीद जानते हैं कि कामोकी से मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ सैयद मोहम्मद ज़रियाब नकवी से। जी ज़रिया, मजीद इसी हवाले से आप आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कामोकी थाना सिटी के इलाका की तमाम दुकानें रात 2 बजे तक खुली रहती हैं, मगर सिटी पुलिस बेबस हो गई। तमाम दुकानें बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा और तमाम होटल सरेआम खुले रहते हैं। सिटी पुलिस आती है और चक्कर लगाकर चली जाती है। टीएसपी सर्कल कामोकी आमर मलिक साहब और असिस्टेंट कमिश्नर कामोकी शादाबाद जोता साहब से अपील है कि इसका नोटिस लिया जाए ताकि कानून की धज्जियां ना उड़ाई जा सके। खुसूसी रिपोर्ट कैमरा मैन रऊफ अहमद के साथ सैयद मोहम्मद ज़रियाब नकवी, कामोकी। जी बहुत शुक्रिया ज़रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। पिंडी बाईपास के करीब जेटी रोड पर बस डिवाइडर से टकरा गई। डिवाइडर से टकराने से बस उलट गई। बस उल्टने से जबकि 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जबकि 4 जख्मियों को फर्स्ट एड देकर फारिग कर दिया गया, जबकि मजीद 4 जख्मियों को तिबी अमदाद के लिए सिविल अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू कम के मुताबिक बस डाइवर्ट तेज रफ्तारी के बायस लगी। इसी हवाले से मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद वकास से। जी मलिक वकास साहब, इसी हवाले से मजीद आप आगाह कीजिएगा। जी नाजरीन, गुजरांवाला पिंडी बाईपास के करीब जीटी रोड पर बस ड्राइवर से टकरा गई। गुजरांवाला ड्राइवर से टकराने से बस उलट गई। बस उलटने से 8 अफराद जख्मी हो गए। 4 जख्मियों को फर्स्ट एड देकर फारिग कर दिया गया, जबकि 4 जख्मियों को तबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुजरांवाला बस ड्राइवर से तेज रफ्तार के बायस लगी। रेस्क्यू ब्यूरो चीफ मलिक वकास, एसपी न्यूज़ गुजरांवाला। जी बहुत शुक्रिया मलिक वकास साहब, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जबकि मजीद आम खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। CPO गुजरांवाला की मुंशियात फरोशों के अलावा मौती जुर्म में मुलव्विस अफराद के खिलाफ ऐलान जहाद कर दिया। ASO अरूप फरोख्त नवाज की निगरानी में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद हसन मंज इंचार्ज पुलिस चौकी आलम चौक के दुबई एंट्री और मुंशियात फरोशों के खिलाफ ऐलान जहाद का ऐलान कर दिया। DSP क्रेड शाकिर नवाज वराइच की निगरानी में SHO फरोख्त नवाज हमरा मोहम्मद हसन मंज सब इंस्पेक्टर ने गोम पीर कर मुंशियात का मजमूम गुनाहों कारोबार करने वाले अफराद से भारी मिकदार में पकड़ी और इनकी पुछनाखी करने वालों को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में चर्च पकड़ ली। इंचार्ज आलम पुलिस चौकी मोहम्मद हसन मंज ने साफियों को बताया कि इस वक्त मुंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। इस वक्त अरूप पुलिस ने मौतूद मुंशियात फरोश पकड़े हैं। अलावा अजी किराएदार एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किए गए हैं। DSP शाकिर नवाज वराइच ने CPO की हदायत पर SHO और इंचार्ज आलम पुलिस मोहम्मद हसन मंज सब इंस्पेक्टर को शाबाश पेश की। सुसीपुर मलिक वकास महमूद, ब्यूरो चीफ, SP न्यूज़ गुजरांवाला। खबर शामिल करते हैं डेरा बगटी से। डेरा बगटी पुलिस का मायारी तरीकाकार, SOPs की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन। कई मोटरसाइकिलें और गाड़ियां चलान, जुर्माना और वार्निंग। हुकूमत बलोचिस्तान की जानब से अंदरूनी शहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जारी करदा मायार तरीक़ाकार पर अमल दरामद के हवाले से SOPs डेरा बगटी फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अताउर रहमान तरीन के दिए गए कामात पर मयारी तरीक़ाकार SOPs की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ DSP सर्कल सुई खालिद बुजदार हमरा, SHO सिटी सुई आफ्ताब अली डोमकी, CIA इंचार्ज आजम कशकोरी और ट्रैफिक सार्जेंट फतेहुल्ला ने खिलाफवर्जी करने वालों सख्त एक्शन। कई आज मोटरसाइकिलें और गाड़ियों को चलान, जुर्माना और वार्निंग किया गया। जिला डेरा बगटी के तमाम ट्रांसपोर्टर्स को तनबीह की जाती है कि वो तयशुदा पाबंदियों पर मुकम्मल अमल दरामद करें। दीगर सूरत सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। सुसी रिपोर्ट शिबाज शरीफ, ब्यूरो चीफ, SP न्यूज़ डेरा बगटी। खबर शामिल करते हैं मंडी बहावलदीन से। खरल मोहब्बतपुर के रायशी मोहम्मद एहसन वल मोहम्मद नवाज कोम खरल साकन खरनवाला ट्रैक्टर लेकर डेरा पर जा रहा था कि रास्ते में गात लगाए मुल्जमान हामद उर्फ वरियाम 2 नामालूम अफराद ने मोहम्मद एहसन पर को जान से मारने की गर्ज से फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर फायरिंग की जद में आकर मोहम्मद एहसन जख्मी होकर जमीन पर गिर गया। फायरिंग की आवाज सुनकर हिजरे ख्यात वल्द वपाप कोम खरल साकन खरनवाला मौका पर पहुंच गए।
मौका पर पहुंचने पर मुलजमान फायरिंग करते हुए मौका से फरार हो गए। जराये के मुताबिक वजह उनाद खानदानी रंजिश है। पुलिस थाना सिविल लाइन ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। सुसीरपुर मिर्जा असलम जावेद, सब एडिटर SP न्यूज, मंडी बहावलदीन। खबर शामिल करते हैं मंडी बहावलदीन से। DSP तारक शफी डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर ने जिला भर के ट्रैफिक स्टाफ से मीटिंग की। दौरान मीटिंग उन्होंने कहा कि अपनी ड्यूटी इबादत समझ कर करें। हुकूमत ने आपको बेहतरीन मराहत और वसाइल दिए हुए हैं, लिहाजा आप पर जिम्मेदारी आयद होती है कि अपने फर्ज से मुखलिस होकर इंतहाई मेहनत और ईमानदारी से अपने फराइज सर अंजाम दें। अवामुन्नास से खुश इखलाकी से पेश आएँ, पहले इस्लाम फिर कलाम को अपना शऊर बनाएं। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, जबकि ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवर, तेज रफ्तारी, ओवरलोडिंग, वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए। DSP तारक शफी ने अवामुन्नास के लिए पैगाम देते हुए कहा कि ट्रैफिक कानून की पासदारी करें, हमेशा अपनी लाइन में रहते हुए गाड़ी चलाएं। दौरान ड्राइविंग जल्दबाजी का मुजाहिरा न करें, क्योंकि जल्दबाजी अक्सर व बेशतर हादसात रोनमा हो जाते हैं। ट्रैफिक कानून शहरियों की हिफाजत के लिए ही बनाए गए हैं और इनकी पासदारी करने में अवामुन्नास का ही फायदा है। गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाते वक्त ड्राइवर्स को चाहिए कि सड़क पर पैदल चलने वालों का एहतराम करें और इन्हें सड़क क्रॉस करने का मौका फराहम करें। सुसीरपुर मिर्जा असलम जावेद, सब एडिटर SP न्यूज, मंडी बहावलदीन। खबर शामिल करते हैं डेरा बगटी से। SP डेरा बगटी फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अताउर रहमान तरीन की हदायत पर DSP SDPO सर्कल डेरा बगटी मोहम्मद इकबाल हमरा SHO और CIE इंचार्ज मोहम्मद बिलाल ने एहसास कफालत प्रोग्राम सेंटर का दौरा किया और आवाम से जारी प्रोग्राम के बारे में दरियाफ्त किया गया और आवाम से कहा गया कि किसी किस्म की बदनवानी की सूरत में अपनी शिकायत थाना में दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा रोड और बाजारों में कोरोना वायरस एहतियाती आगाही मुहिम चलाई और आलमी वबा कोरोना वायरस के फैलाव से बचने के लिए डेरा बगटी आवाम को मास्क पहनाए गए और एहतियाती तदाबीर मुकम्मल अमल कराने की हदायत की और लोगों को समाजी फासला अख्तियार करने, मास्क और सैनिटाइजर इस्तेमाल और हाथों को बार बार धोने और गले मिलने या हाथ मिलाने से परहेज करने और हुकूमती बलोचिस्तान की जानिब से जारी करदा SOP पर अमल दरामद करने को कहा गया। इस निस्बत खिलाफ वर्जी करने पर 3 दुकानें सील कर ली गईं और आइंदा के लिए सख्त एहतियात और इक़दाम जारी कर दिए गए। सुसीरपुर शहबाज शरीफ, ब्यूरो चीफ SP न्यूज, डेरा बगटी। खबर शामिल करते हैं मेलसी से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान ने मुतअद्दिद SHOs के तबादले जात के अहकाम जारी कर दिए। SHO इंस्पेक्टर रियाज अहमद को थाना गग्गू से बतौर SHO थाना सिटी विहाड़ी, SHO इंस्पेक्टर हक नवाज को थाना सिटी विहाड़ी से SHO थाना सदर बोरेवाला, जबकि SHO सब इंस्पेक्टर मोहम्मद तफील को सदर बोरेवाला से बतौर SHO थाना सदर विहाड़ी, SHO सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शमआन को थाना सदर विहाड़ी से बतौर SHO थाना सदर मेलसी, जबकि इंस्पेक्टर असगर अंजम को थाना सदर मेलसी से बतौर SHO थाना गग्गू तैनात कर दिया गया। तमाम SHOs को फौरी नई जगह तैनात पर रिपोर्ट करने के काम जारी कर दिए गए। सुसीरपुर शेख सैयद अहमद, नुमाइंदा सुसी, SP न्यूज, मेलसी। खबर शामिल करते हैं मंडी बहावलदीन से। TMA की तरफ से वासू रोड पर हैवी ट्रैफिक को रोकने के लिए लगाया गया ओवरहेड बैरियर एक तरफ झुक गया। आवामी खल्कों का कहना है कि इससे पहले कि ये किसी बड़े हादसे का सबब बने, इंतजामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर नोटिस ले। जबकि मंडी बहावलदीन से मजीद एक और खबर शामिल करते हैं। हाजी मोहल्ला मंडी बहावलदीन शहर के रहायशी, पाक फौज के रिटायर्ड मुलाजिम और रावलपिंडी बार के मेंबर नामवर वकील खालिद इकबाल को 14 जून बरोज हफ्ता रात 2 बजे के करीब मुसल्लह अफराद ने इनके हॉस्टल वाक़या चांदनी चौक रावलपिंडी से अगवा कर लिया। लवाहिकीन के मुताबिक पुलिस थाना सदका आबाद रावलपिंडी ने ताहाल अगवा की FIR दर्ज न की, जिससे इन्हें अंदेशा है कि अगवाकार खालिद इकबाल को जानी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने IG पंजाब शुएब दस्तगीर और RPO रावलपिंडी से मुतालबा किया है कि खालिद इकबाल को फौरी तौर पर बाजियाब करवाया जाए। जबकि मंडी बहावलदीन से मजीद एक और खबर शामिल करते हैं। तहसील फालिया के नवाखी गांव नैन रांझा में जायदाद की लालच में मुल्जम उमर खयात वल्द ज़ियाद कौम रांझा ने जायदाद की लालच में अपने सगे बेऔलाद भाई को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। DPO नासिर खान सियाल ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुतल्लिका थाना की पुलिस को फौरी कार्रवाई की हदायत जारी की, जिस पर मुल्ज़िम को असला समेत गिरफ्तार कर लिया गया। DPO नासिर खान सियाल ने समाजी राब्ते की मारूफ एप्लीकेशन पर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि कत्ल के 90% वारदातों में करीबी अजीज मुलव्वस पाए जाते हैं।
और वजह कत्ल जायदाद के तनाज़ा होते हैं, लेकिन पुलिस बर वक्त मुलजमान को गिरफ्तार कर रही है। सुशील रिपोर्ट मिर्जा असलम जावेद, सब एडिटर एसपी न्यूज़, मंडी बहावलदीन। खबर शामिल करते हैं दाऊद खेल से। थाना दाऊद खेल पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। गैर कानूनी असला रखने वाले, जवारी और मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गैंग गिरफ्तार। असला, जुआ की रकम, चोरी शुदा मोटरसाइकिल रकम बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं दाऊद खेल से मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ तनवीर आबिद खान साहब से। जी तनवीर आबिद खान साहब, इसी हवाले से मजीद आप आगाह कीजिएगा। जी। डीएसपी सर्कल मूसा खेल मार मोहम्मद रियाज की सरबराही में एसएचओ थाना दाऊद खेल हुसैन मेहदी इमरान और उनकी टीम ने समाज दुश्मन अनासिर, गैर कानूनी असला रखने वालों और मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हुए 2 मोटरसाइकिल चोर मोहम्मद इसानुल्लाह उर्फ साना और सैफुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से माल मसरूका में 1 अदद मोटरसाइकिल 70 सीडी और 1 लाख रुपए बरामद किए, जबकि एक और कार्रवाई में कत्ल के मुकदमा नंबर 2 से 31/19 में गिरफ्तार ए कैटेगरी के 2 मुजरिम इश्तिहारी मोहम्मद शरीफ खान अमीर से दौरान तफ्तीश वारदात में इस्तेमाल होने वाला असला 2 अदद राइफल 7mm बरामद की। जबकि माड़ी शहर में जुआ के अड्डा पर कार्रवाई करते हुए डोली दाना पर जुआ खेलने वालों पर रेड करके 10 अफराद को काबू में करके दाव पर लगी रकम 9,000 रुपए, 7 अदद मोबाइल बरामद करके मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज कर लिए। जी बहुत शुक्रिया तनवीर आबिद खान साहब, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। साहिवाल मिशन चौक MCB बैंक मेन ब्रांच आर्जी तौर पर बंद। साहिवाल में कोविड-19 कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र ब्रांच को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। सुशीलपुर कमर निशान, ब्यूरो चीफ SP न्यूज़ साहिवाल। खबर शामिल करते हैं मंडी बहावलदीन से। अदालत से तारीख बुकत कर वापस आने वालों पर मुखालफिन ने फायरिंग कर दी, जिस जद में आकर 2 भाई मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सरफराज और इनका दोस्त काशिफ शदीद जख्मी हो गए। तीनों मोहल्ला शफकत आबाद के रायशी बताए जा रहे हैं, जबकि पुलिस मसरूफ़ तफ्तीश है। सुशीलपुर मिर्जा असलम जावेद, सब एडिटर SP न्यूज़, मंडी बहावलदीन। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल अमीर तैमूर खान की हदायत पर अमल करते हुए डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक साहिवाल मियां आसिफ कमाल ने कोरोना वबा के पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ चौकों पर जाकर शहरियों को आगाही देते हुए मास्क तकसीम किए और शहरियों को ट्रैफिक कानून के हवाले से भी आगाही दी। इस मौका पर DSP ट्रैफिक मियां आसिफ कमाल ने कहा कि इस वबा से बचने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करते हुए एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए और समाजी फासला बरकरार रखते हुए मास्क और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा ट्रैफिक हादसा से बचाव के लिए ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद करना चाहिए। इस सिलसिले में शहरियों में ट्रैफिक आगाही पम्फलेट भी तकसीम किए गए। इस मौका पर चौधरी वकीदुल हक ऑनर कमांड कॉलेज साहिवाल भी हमरा मौजूद थे। सुशीलपुर कमर निशान, ब्यूरो चीफ SP न्यूज़ साहिवाल। साहिवाल से मजीद एक और खबर शामिल करते हैं। साहिवाल मुसलसल लोड शेडिंग से आवाम हुई परेशान। साहिवाल के मुख्तलिफ इलाकों में लगातार लोड शेडिंग, ना बिजली ना गैस। सर्दी का एक बहाना था कि गर्मियों को भी गैस जाना था। साहिवाल रात के 10 बजे के दरमियान गैस की मुकम्मल लोड शेडिंग। आवाम ने होटल और तंदूरों का रुख कर लिया। रिपोर्ट पेश कर रहे थे साहिवाल से मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ कमर निशान। खबर शामिल करते हैं सराय आलमगीर से। सराय आलमगीर के नवाखी गांव बेसा किला फलाही कामों की जानब एक और कदम आगे। जिला गुजरात तहसील सराय आलमगीर के गांव बेसा किला में बेसा वेलफेयर एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान के ताउन से गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल बेसा किला चौक पर बेसा के नौजवानों ने अपनी मदद आप के तहत ड्यूटी सर अंजाम देना शुरू कर दी कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए सख्त गर्मी में मास्क लोगों में तकसीम किए जा रहे हैं और कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर आम आवाम की तवज्जो दिलाई जा रही है। नौजवानों को कहना था कि इस मुश्किल वक्त में नौजवानों समेत गांव के हर शख्स को आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करना होगा ताकि हम एक कौम बनकर इस मुश्किल वक्त में से इस वबा से अपने आप को और अपने गाँव को और इस मुल्क को बचा सकें। एलियाने बेसा वेलफेयर एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान ने नौजवानों की हौसला अफजाई की और नौजवानों के जज्बे को सलाम भी पेश किया। सुसी रिपोर्ट खुरम शहजाद, नुमाइंदा सुसी, SP न्यूज़ सराय आलमगीर। खबर शामिल करते हैं लस वेला से।
खूब महकमा कमेटी अदालत रोड की जानब से सर्जिकल मास्क तकसीम किया गया, जबकि शहरी को कोरोना वायरस से बचने और SOPs पर अमल दरामद के मुतालिक आगाही दी गई। अदालत रोड महकमा कमेटी ने मुख्तलिफ इलाकों अदालत रोड, रंग महकमा, RCD रोड, गुडानी स्टाफ पर शोर आगाही मुहिम के तहत खूब के सरगर्म समाजी रहनुमा नुमान बनगर, नसीबुल्लाह, मुजम्मल बलोच की सरबराही में शहरियों में सर्जिकल मास्क तकसीम किए गए और शहरियों और ताजरों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क समेत समाजी दूरी रखने के लिए मुतल्लिक शौर आगाही दी गई। लोगों ने बातचीत करते हुए कहा कि अपनी मदद आप के तहत सर्जिकल मास्क तकसीम करके कोरोना वायरस के मुतालिक हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs के बारे में शौर और आगाही दी गई। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो SOPs पर अमल करके मास्क का इस्तेमाल करें और समाजी दूरी का ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि आगाही मुहिम में जारी रखे गए इस मौका पर खूब के सियासी समाजी शख्सियत नदीम रंज, समाजी कारकुन गुलाम रसूल बलोच, नुमान अमीर जई, एयाज बलोच, सरफराज बलोच और दीगर अदालत रोड के जवान मौजूद थे। सुसीरपुर अली गुल खान, ब्यूरो चीफ SP न्यूज़, लसपेला। खबर शामिल करते हैं कामुकी से। कामुकी SHO थाना तितले आली गुलाम फरीद करप्शन के इल्जाम में मुअत्तल। 20 लाख रुपए रिश्वत लेकर कब्जा करने की कोशिश नाकाम। करीब किसान पर झूठा मुकदमा दर्ज कराने और कब्जा करवाने पर CPO साहब का एक्शन। सुसीरपुर सैयद मोहम्मद जरियाब नकवी, ब्यूरो चीफ SP न्यूज़, कामुकी। नाजरीन, मज़ीद खबरों के लिए SP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।